کرنا ہے. ان کی لائن پہلے کٹ گئی تھی پروگرام سے پہلے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف. سر ابھی ڈار صاحب موجود تھے. ڈار صاحب نے کہا کوئی شرط نہیں ہے لیکن بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف اگر مذاکرات شروع ہو تو اپنا پوسٹ پون کر دیں, ملتوی کر دیں اپنے احتجاج کی کال. آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کیا ملتوی کر سکتے؟ سب سے پہلا سوال, کیا ملتوی کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات؟ وہ کہتے ہیں کل ہماری میٹنگ ہو سکتی ہے پہلی. کاشف ہم میٹنگ کے لیے تیار ہیں. وہ بلا مشروط اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر راستہ مذاکرات کا راستہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عمل دخل ہے نیتوں کا, اگر حکومت کی نیت میں کوئی خلل نہیں ہے تو یہ مسئلہ بالکل حل طلب ہے. ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں. ایک مسئلہ صرف ٹی او آر کا ہے. یہ بیٹھ کے ٹی او آر طے کرے. 2 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, 1 نشست میں ہو سکتا ہے, 1 دن میں ہو سکتا ہے, اور جوڈیشل کمیشن تشکیل دے اور وہ اپنے کام کا آغاز کرے. جوڈیشل کمیشن کے آغاز پر ہم اپنا سب کچھ کال آف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انگریزی کی مثال ہے ونس بٹن ٹوائس شائے. تو جب تک جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں پاتا اور کمنٹس نہیں کرتا ہم کال آف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو کراچی کا احتجاج اپنے وقت پر اور جیسے آپ نے پلان کیا ویسے ہی ہوگا؟ جی, کراچی میں جو آپ نے احتجاج کی دی ہوئی ہے وہ ویسے ہی اپنے پلان کے مطابق ہوگی آپ کہتے ہیں, اگر مذاکرات شروع ہو جائے تب بھی؟ کراچی اور لاہور اپنی جیسے پلان ہے ویسے ہوگا. اگر کمنسمنٹ ہو جائے, جوڈیشل کمیشن تشکیل ہو جائے تو بالکل کراچی اور لاہور جو ہے اس کے بارے میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے اور جوڈیشل کمیشن اپنا کام شروع کر دے. ہم بلا وجہ کیوں اصرار کریں گے احتجاج پر؟ اسمبلیوں میں جائیں گے اگر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں چلا گیا؟ شاہ جی کاشف مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. اگر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن وہ بنا دیتے ہیں, جوڈیشل کمیشن اپنا کام شروع کر دیتا ہے, عمران خان صاحب نے کہا تھا اسمبلیوں میں ہم نے نہیں جانا, کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے اس کے بعد؟ کاشف جب جوڈیشل کمیشن کام شروع کر دے گا معاملات ایک نئی نوعیت اختیار کر لیں گے اور پھر جو ہے ہم جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو قبول کریں گے. لیکن اسمبلیوں میں جانے پہ آپ نے جواب نہیں دیا. شاہ جی یہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی پہلے اس کو تشکیل پانے دے. میں قبل اس وقت بات نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارا ماضی کا تجربہ کچھ اچھا نہیں ہے اور میں نے کہا نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے, میں اس لیے محتاط بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹی او آر فائنلائز کرے, جوڈیشل کمیشن تشکیل دے, جوڈیشل کمیشن اپنا کام شروع کرے تو ایٹماسفیئر بدل جائے گا. پھر ان تمام باتوں پر بات ہو سکتی ہے؟ جی, پھر ان تمام چیزوں پہ بات ہو سکے گی؟ کاشف جب ایک انوائرمنٹ تبدیل ہوتی ہے نا, دیکھیے مسئلہ کیا ہے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو ہے کہ 2013 کے انتخابات کی تحقیق ہو کہ اس میں ہمارا موقع سے بات نہیں ہے. انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے اور بات آگے. جی میں بیٹھ گیا ہوں پروگرام میں بیٹھ گیا. آواز کٹ گئی شاہ محمود قریشی صاحب کی. خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ جی ونس بٹن ٹوائس شائے, یعنی وہ اب بھی اس بات پر کنونسڈ شاید نہیں ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ آگے کیسے چلیں گے. کیا سیریس ہے اس وقت پالیٹیشنز میں کہ اب اس مسئلے کو بہت لنگر آن کر گیا, اس کو حل کرنا چاہیے؟ جی سیریسنس تو اس دن بھی تھی جس دن خان صاحب نے کنٹینر میں کہا تھا کہ میرے لوگ جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں لیکن میں اس کو نہیں مانتا. بٹن تو ہم ہیں, وہ نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مذاکرات کو انڈرمائن خود ان کے تحریک نے کیا تھا اور اس کے بعد سے مذاکرات سسپینڈ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں جو ان کے قائدین, جو صفحے دوم کے قائدین کر رہے تھے مذاکرات خان صاحب کے بہاف پہ, ان کو تو خان صاحب نے خود انڈرمائن کر دیا تھا نا, کہ کہا تھا کہ جی میں ان کی بات نہیں مانتا, یہ میں تو استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اگر اس وقت ہی یہ جو بات اب ہوئی ہے وہ ہو جاتی تو اس وقت بھی معاملہ ہو سکتا تھا. ابھی بھی ایشو یہی ہے کہ ہم نے پہلے دن بھی جب 13 اگست کو پرائم منسٹر نواز شریف کی ڈائریکشن کے اوپر سیکرٹری لا نے سپریم کورٹ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ ایک 3 ججوں کا پینل ہمیں دیں, جس میں ایک آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیں گے چیئر کو ہوگا. اسپیسیفکلی لکھا گیا کہ
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो एलिगेशंस हैं 2013 के इंतखाब के खिलाफ, उनको चेक करना है इन फैक्ट एंड लॉ, हकाइक और कवानीन जिसके तहत उसमें कोई साजिश हुई, उसका किसी फर्द को या पार्टी को फायदा हुआ है? यही सवाल ये है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर बेकायदगियां पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और जो इशू अभी भी इसमें जरूर इसके ऊपर बहस हो यही होनी है कि आप धांधली किसको कहते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में 12 ये बात की है कि धांधली तो वो थी जो 2002 में हुई थी, धांधली तो वो थी जो हमने पहले देखी है पाकिस्तान में। अगर बेकायदगियां हैं, अगर इलेक्शन कमीशन के इश्यूज में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में इश्यूज थे, डेमोन्स्ट्रेट तो ये करना है कि इस तमाम अगर जो बेकायदगी थी इसका प्रिंसिपल बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ है। और ये जहां तक भी वैसे, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, बहुत से हलकों में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा ग्रीवेंस है इस पे। पीपल्स पार्टी का ख्याल है आरओ के इलेक्शंस थे, उनका ख्याल हमारी सीटें हमें हरवाई गई है इंफरादी तौर पर। तो मैं जो आपका आर्ग्यूमेंट है, देखिए द पॉइंट इज कि अगर हम सब विक्टिम हैं मुख्तलिफ जगहों पे, गौसर शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, अगर हमको फातेह करार दे दिया गया, उनका ही मानना था हमारे से बड़ी धांधली। ये इस वक्त बहस इलेक्शन कमीशन ये बहस नहीं है जिस पे हम उलझ गए। बात पर अपना जो खुर्रम कह रहे हैं, अब डार साहब की बात के बाद इस बात की बेईमानी हो जाती है, इसलिए नहीं, लेकिन अंदर बैठ के कारा साहब बात यही होगी। मैं कहता हूं, दो पेपर मेरे सामने पीटीआई और पीएमएलएन के पड़े, ये इसी जगह मुझे भी उस बात का पता है क्या है। अगर एक जिम्मेदार गवर्नमेंट का वजीर मीडिया पे बैठ के ये बात कहेगा तो इसका मतलब आप तो ऐलान कर रहे हैं कि मुझसे क्या लेने आए, तुम तो हो ही गलत। नहीं, हम ये नहीं कहते। तो आप तो यही प्रिसाइसली आप यही कह रहे हैं। अगर आप अपने जुमले दोहरा लें तो इस वक्त मैं आपको तजवीज दूंगा कि अगर मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं तो ताने तशनी बंद करें। मैंने तो आप लहजों को कंट्रोल कर लें, उनको भी अपने लहजे कंट्रोल करने चाहिए। उतना ऊंचा भी नहीं बोला जितना आपने बोला है। मैं तो बहुत हल्की आवाज में इस बात का तयन होना है कि क्या इन इंतखाबात में, और इसी पर बहस होनी, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूं जिसके ऊपर बहस होनी है और अभी भी ये मामला हल होना है। एक मुस्बत और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हम इन मुज़ाकरात में जा रहे हैं और कोशिश यही है कि पाकिस्तान को जो मुआशी नुकसान पहुंच रहा है और जो अदम इस्तेहकाम है, जिससे पाकिस्तान की मुईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है, हम इसको अभी एक सियासतदान बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, और जो हमारे दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी इसमें मुआवनत कर रही हैं, हम एक मुस्बत नतीजे तक पहुंचे ताकि पाकिस्तान का जो आईनी जमहूरी निजाम है वो आगे चल सके। इजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कारा साहब, अब ये खुल के कहें या ना खुल के कहें, बात अंदर बैठ के उन नुकात पर होगी जो पहले का, ये मेरे पास दोनों पेपर्स मौजूद है, पीटीआई का और पीएमएलएन का, जो वर्किंग पेपर्स मुज़ाकरात के दौरान तय हुए। क्या 30 सीटें काफी हैं? क्या धांधली की तारीफ वो है जो एक कर रहा है? ये स्टिकिंग पॉइंट्स पहले भी थे, इसी बात पर इख्तलाफ है पहले से। आप भी कहते हैं धांधली हुई, ये भी कहते हैं धांधली हुई, लेकिन धांधली किसको कहना है? वो हमें इफेक्ट करेगी यानी हुकूमत को, हुकूमत उसको कैसे देखेगी? ये तो यहाँ पे आगे तो मामला फंसेगा। डार साहब ने एक बात वाजे कर दी अपनी आपकी गुफ्तगू में। उन्होंने ये बात कही कि अगर ये वाजे हो जाता है कि सिस्टमेटिक धांधली हुई और हम बेनिफिशरी थे तो फिर हमें जाना होगा, हम बेमानी हो जाएंगे। ये तो उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा। इसके बाद वो सारी कौम के सामने कह रहे हैं, मुझे तो कोई इस पर डाउट नहीं रह गया और हमें इसको मानना चाहिए कि डार साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो यकीनन उनके ज़हन में ये बात, और ये पॉजिटिव साइन है। अगर ये, और बात भी दुरुस्त है, टेक्निकली लीगली भी बात दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन प्रोब होते हैं और इलेक्शन प्रोब में ये वाजे हो जाता है कि इलेक्शन में धांधली बड़े लेवल पे हुई, साजिश के तहत धांधली या इंफरादी धांधली हुई और बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग है। देखे ना बेनिफिशियरी, ये इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? यही तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अगर 25-30 सीटों पे नून लीग के अफराद जीते हैं, फिर ये 25-30 सीटों के ऊपर धांधली जो है ना, वो अगर वो वाजे होती है, पहली तो बात यह है कि सारे इलेक्शन, जुमला पूरा करें, 25-30 सीटों पे वाजे होती है, फिर अगर वाजे होती है और बाकी इलेक्शन शफाफ है तो कोई इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं होगा। उन हल्कों के अंदर ज्यादा इलेक्शन हो सकता है, फैसला करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अभी तो सारा इलेक्शन प्रोब होना नहीं है। पहले तो जहां मेरी इतला है कि कोई 25-30 हल्के जो हैं आपस में सेटल हुए थे कि इन हल्कों को प्रोब करके देख लें, अगर इनमें से कोई बड़ी बात निकलती। नहीं मानती। कौन? मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि 30 सीटें सिर्फ 11% इलेक्शन बनता है। ये कहता है, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेस्ट सैंपल के तौर पे लिया जाएगा। अगर 30 से 25 सीटों का टेस्ट सैंपल हो जाता है, चेक होता है और
कमीशन देखता है कि इसमें बड़े लेवल पे धांधली है और सिस्टमेटिक है, तो पूरा इलेक्शन आपको खोलना पड़ेगा। फिर ऑडिट हो इलेक्शन। पूरा इलेक्शन ऑडिट हुए बगैर आप गवर्नमेंट को डिमोलिश नहीं कर सकते, आप असेंबली को घर नहीं भेज सकते, ये बात तयशुदा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा आपसे इस पे मजीद बात करना चाहूंगा, मैं क्योंकि इजाज चौधरी साहब को प्रोग्राम में ले आऊं, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। इजाज चौधरी साहब, आपने कायरा साहब को सुना, अब ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ लें जो कायरा साहब के ज़हन में आ रही है कि हम इससे शुरू करें, इससे आगे जाएं, 30 सीटें खोलें, अगर उसमें धांधली साबित होती है फिर मजीद आगे, ये मुज़ाकरात में यही गुफ्तगू होनी है। ये आपके लिए काबिल कबूल, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच काबिल कबूल होगी कि जनाब पहले 30 खोलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है कि किस लेवल की धांधली है, कौन कौन शामिल है, साजिश है या नहीं, उसके बाद आगे चलेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया काशिफ। मैं थोड़ा सा एक फिक्रा अगर आप इजाजत दें तो ये कहना चाहता हूं कि 10 नवंबर को तहरीक इंसाफ का जो फ्रेम ऑफ माइंड था वो ये था कि आपने 5.25 नकात हमारे मान लिए हैं और सिर्फ एक बात के ऊपर एतराज है कि आप वजीर आजम का इस्तीफा तलब न करें, चुनाचे हम छोड़ देते हैं उस बात को। और वो सारी बातें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद यानी खोल के बात की है ना कि TOR में से कौन सी बात थी और कहां हम रुके हुए थे, असल में हम वहां से शुरू करना चाहते हैं। और हमारा माइंडसेट तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इस्तीफे के अलावा हम अपनी जद्दोजहद को और तहरीक को जारी रखेंगे। आप मुज़ाकरात का आगाज वहां से करें जहां से वो डोर टूट गई थी। अगर तो वहां से बात आगे बढ़ती है 5.25 नकात वाली, तो मेरे दानिश में इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर PMLN का माइंडसेट तब्दील हो गया है और अगर वो ये कहती है जिस तरह के अब सबका नैरेटिव एक हो गया है कि जनाब इमरान खान ने अब यू टर्न ले लिया है और अब उन्होंने ट्राइब्यूनल को तस्लीम कर लिया है और अब उन्होंने सारी बात जो है वो अदालत में ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इनका ज़हनी जो फ्रेम है वो दुरुस्त नहीं है। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह गए, देखिए यहाँ से सब बड़ी माजरत के साथ आपने डार साहब की बात नहीं सुनी। डार साहब ने ये बात कही है, मैं डार साहब की बात नहीं सुन सका, मैं वही कह रहा हूँ, कायरा साहब आपको बता देते, सुन ले। उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि जहां पे मुज़ाकरात टूटे थे उसमें बाकी चीजें तय हो गई थी, कमीशन होगा, कितने दिनों में फैसला करेगा। एक चीज था TORs के क्या उसमें उसका दायरा कार क्या होगा, स्कोप क्या होगा, वो उसमें बात होनी है। उसके ऊपर उन्होंने भी कहा है एग्जैक्टली वही बात जो आप कह रहे हैं और ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मैंने खुरम से भी गुजारिश की है, आपसे भी करूंगा कि इस वक्त मिसट्रस्ट की बात न करें। आप जो कुछ हुआ बड़ा गलत हुआ, अभी तक जो कुछ हुआ आपको भी पहले तस्लीम कर लेना चाहिए था, आपकी लीडरशिप को चाहिए था कि वो वजीर आजम का इस्तीफा ना मांगते, आप भी सिविल ना फरमाने की काल ना करते और इनको भी चाहिए था कि यही मुज़ाकराती अमल पहले ना तोड़ते, अपने मसल पार ना दिखाते, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल होता। और अब होने लगा है, चौधरी साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूं, मुझे ब्रेक ले लेने दें। ये बात मैं ब्रेक के बाद आपसे कहता हूं इसी इशू पर कि किस तरह इसको हैंडल करना चाहिए। देखिए बड़ा ट्रिकी मामला आ गया है, बड़ा नाजुक ये मामला बन गया कि किस तरह इसको आगे लेकर चले, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या हो, किस पे मान लेना चाहिए, कहां प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये धांधली की तारीफ जिस तरह उन्होंने कहा, ये इसमें भी लिखा, तारीफ का इशू नहीं है अब सर, उससे बात आगे निकल गई है। धांधली की तारीफ का इशू जिस तरह इनके उसमें लिखा था कि जिस तरह नॉन वेरीफाइबल गैर तस्दीक शुदा वोटों को आप जाली नहीं मान सकते। आप इलेक्शन कमीशन